पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य 2 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। आज कमेटी की तरफ से सिलीगुड़ी संलग्न न्यू चामटा स्थित एक निजी रिजॉर्ट में केंद्र सरकार की विभिन्न सेवा परियोजनाओं की प्रगति पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया है कि भारत सरकार की उड़ान, राशन और चाय बागानों की कई परियोजनाओं में हुई अनियमितताएं की दोबारा जांच करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। कमेटी के सदस्यों ने सार्वजनिक वितरण, नदी कटाव, बाढ़ की स्थिति, मिड डे मील, चाय बागान सहित केंद्र सरकार की उड़ान और भारत माला योजना पर चर्चा की। वहीं आज बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की कमियों को उजागर किया। इधर सरकारी परियोजनाओं में अनियमितताएं की जांच पूरी होने से पहले कमेटी के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को कोई रिपोर्ट दिए बिना एक पत्रकार सम्मेलन की। वहीं कमेटी के सदस्य तथा भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और राम कृपाल यादव ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभा से बाहर चले गए। For consecutive 2 days, we are having an informal discussions with number of concerned ministry along with their departments in order to strengthen the assigned responsibilities of those concerned ministry. Me along with my colleagues here have been engaged in having the informal discussions under the template of a study visit of the Public Accounts Committee, and already we have discussed at length with those ministry, and it will be continuing today also in Siliguri, and further it will be extended to Kolkata also. I thought it prudent to at least flag your attention and to acquaint you with the issues that are selected for the discussions. So number one, the committee is seized of some important issues raised by CNAG, Controller and Auditor General, in their report, which were taken up by the committee yesterday on 24th November 2023. The committee had noted that audit has pointed out certain glaring irregularities and therefore felt the need to undertake a thorough examination of important audit reports on schemes of Government of India, namely Regional Connectivity Scheme of UDAN and implementation of Bharat Mala Pariyojana Phase 1. It is surprising to find that more than 50% of the awarded routes under the UDAN scheme could not even commence operation, and only 30% completed the full concession period of 3 years. Audit has pointed out that in spite of CCEA direction, Cabinet Committee on Economic Affairs, neither any independent audit of physical and technical parameter of Bharat Mala Pariyojana 1 and its projects were carried out, nor was any system for half-yearly review of the Pariyojana by Public Investment Board established by the Ministry of Road and Transport. The cost of the project doubled, the delays in awarding contracts were humongous, and there were instances of irregular award of projects. So the committee also interacted with the tea workers of West Bengal to have an insight into the problems of the workers involved in the tea plantation activities. Thereafter, the committee interacted with the representatives of the Tea Board of India and officials from the Ministry of Commerce as well as FASAI. Today, the committee will be interacting with the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Preparedness of Implementation of National Food Security Act 2013, with representatives of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Power and the OIL, EIL, Bamar and Lorry Company Limited, and NEPCO, THDC, DBC, SGVN on measures underway for transition in the energy sector, which is very contemporary subject and needs attention of the government
and with the representatives of the UIDAI on the subject functioning of unique identification of India. The committee will also be discussing the subject schemes for flood control and flood forecasting with the representative of the Ministry of Jal Shakti and other stakeholders along with departments of Government of West Bengal to interact the concerned official and to strengthen the entire infrastructure relating to it. This is our issue. This is our subject matter that we are discussing in an informal manner in this meeting. बंगाल में टी वर्कर की हाल बहुत बुरा है। कल हम बंगाल के टी गार्डन से यहाँ के जो लेबर है, चाहे वो महिला और पुरुष है, सबको बुलाए गए थे और इन सबको बात रखने का चलते इनकी बुरी हालत को देखते हुए किसी को खाना नहीं मिलते, किसी को घर नहीं मिलते, किसी को राशन नहीं मिलते, इलाज नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलते, ये सारे चीज़ को मद्देनज़र ये चीज़ को सुधारने के लिए हम टी बोर्ड को और उनके ऑफिशियल्स को कमेटी की तरफ से गुहार लगाए गए हैं। उनको भी मानना है कि हाँ देखिए, बंगाल में टी गार्डन की जो वर्कर उनके ये 250 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते रोजाना रोजगार। और आप चौंक जाओगे कि साउथ इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु हो, केरल हो, 400, 500, 600 रुपया मिलते हैं। तो टी बोर्ड के ऑफिशियल की ये तर्क था कि बंगाल की सरकार अगर मिनिमम वेज ना बढ़ाए तो हमें कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए बंगाल की जो टी गार्डन्स और टी गार्डन की चलते यहाँ का जो टी वर्कर, इनके बारे में हम लोग काफ़ी चिंता यहाँ प्रकट किए थे और इसके साथ साथ हमारी तरफ से ये भी बहुत सारे सलाह भी दिए गए थे कि क्या करना है या नहीं। बंगाल में 16 से 17 ऐसा टी गार्डन बंद पड़े हुए हैं। सूबे की सरकार कहते हैं कि आप लोगों को हम घर देंगे, लेकिन जब घर देते हैं 3 डेसिमल ज़मीन देते हैं तो लेबर यहाँ आके कहते हैं कि ये छोटी सी इस ज़मीन में 3 डेसिमल ज़मीन में हम घर कैसे बनाएंगे, आशियाना कैसे बनाएंगे। सूबे की सरकार भरोसा देते हैं कि सारे बंद पड़े टी बगीचे को खुला जाएगी, इसको सारे कामकाज मिलेगा, लेकिन यहाँ के बड़े लेबर सारे परेशान हैं क्योंकि कुछ नहीं मिलते इन लोगों को। इनको गरीबी देखकर, इनको बुरा हालत देखकर हम सब अपना तरफ से जो हमारा सलाह था सारे इनको हमने दिए हैं। सुधारने के लिए बहुत सारे हम रिकमेंडेशन भी किए हैं। ये कहते हैं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकमेंडेशन और हमारे जो सोच, ये सोच के साथ और हमारे विचार के साथ ये लोग भी सहमत जाहिर किए हैं। अगले दिन में इसमें सुधार आएंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ बंगाल में आप जानते हैं बाढ़ की चलते त्राही मचे हुए हैं। सारे बंगाल में बाढ़ की हालत बहुत बुरा है। इस विषय पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ बंगाल में आप जानते हैं पीडीएस के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी सारे धांधली और भ्रष्टाचार की इल्जाम लग रहे हैं। तो इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए बंगाल की सरकार और साथ साथ दिल्ली की जो हमारे एफसीआई है उनके सारे ऑफिसर को हम यहाँ बुलाया। दूसरी तरफ कमेटी के सदस्य तथा भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं, वो सिलीगुड़ी के दौरे पे थी और उस सिलीगुड़ी के दौरे पे कुछ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNAG ने कुछ स्कीम्स पे या डिपार्टमेंट्स की जो स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी करने के बाद अगर उस पर पैरा ऑडिट बनता कुछ आपत्तियां होती हैं तो उन आपत्तियों को दिया जाता है। फिर वो पार्लियामेंट में के स्पीकर, ये जो संविधान की एक अस्थाई समिति है लोक लेखा समिति, उसको सौंपते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, परीक्षण के लिए, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। और स्पीकर का एक डायरेक्शन है सेक्शन 55(1) कि आप इसका एग्जामिनेशंस करेंगे। जो संबंधित अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या विभाग के, उनको बुलाएंगे। उस पैरा ऑडिट के जो ऑडिटर जनरल ने किया है उसके मद्देनज़र होगा
और उसके आधार पे आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट को भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे। तो जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाता है तब वो एक तरह से पब्लिक डोमेन में आता है। अभी जो ऑडिट हुआ है और उसको हम एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, तो ये एक तरह से स्पीकर साहब का होता है कि इसमें हम इसको रिवील नहीं करेंगे। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी, ये उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आखिर जब हम एग्जामिनेशन में स्क्रूटनी कर रहे हैं, चाहे उड़ान स्कीम की हो या अन्य किसी स्कीम की, ऑन द बेसिस ऑफ पैरा, आज इतनी उड़ान स्कीम सफल हो रही कि जो जिसके पाँव में चप्पल था आज वो छोटे छोटे रीजनल कनेक्टिविटी हो गई। देश की आज़ादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तब उन्होंने इस तरह की योजना सोची कि देश का एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज़ से हवाई चप्पल पहन के यात्रा करते। और उस स्कीम में आपने देखा कि कितना नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और ये और मोर देन 50% से ऊपर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब उसमें क्या ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने लगाया है पैरा ऑडिट या क्या कमियां दिखाई हैं, उसके एग्जामिनेशंस के लिए हम न कि हम एग्जामिनेशंस कर रहे हैं उस आरोप को कि उड़ान स्कीम को देने में जिनको दिया गया ये इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य कभी होता नहीं, पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि केवल राजनीति के कारण या चेयरमैन अधीर रंजन ने उसका राजनीतिकरण किया, इसलिए किया। इसलिए हमने आदरणीय रामकृपाल यादव जी जो हमारे भारत के पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रदेश सांसद हैं, हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि ये जो आज वो कर रहे थे एक तरह से ऑनरेबल स्पीकर के डायरेक्शन के खिलाफ था। ये उल्लंघन है। भारत के पार्लियामेंट के स्पीकर एक सॉवरेन पर्सनैलिटी होते हैं, वो हाउस के ही द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। तो अब हाउस के कस्टोडियन का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और हम इस काम में आए हैं उस पैरा ऑडिट के मुताबिक सभी विभागों के जो हम यहाँ पे विषय हैं उस पर एग्जामिनेशन परीक्षण करने या उसकी स्क्रूटनी करने, न कि इसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको सार्वजनिक रूप से जब तक रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है। तो ये केवल राजनीतिकरण था, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। और निश्चित तौर पर असहजता हुई जिसके वजह से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग नहीं बहिष्कार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। और निश्चित तौर पर सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। और पार्लियामेंट की जो ये कमेटी होती है, लोक लेखा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, 100 साल पुरानी कमेटी है, संवैधानिक कमेटी है, तो इसकी अपनी गरिमा होती है। और मैं पिछले 5 साल से इसका मेंबर हूँ लगभग। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोई प्रेस के माध्यम से कोई बात कहना। और हम लोग भी कभी मना भी किया जाता है कि इन सब चीज़ों को जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो प्रेस तक नहीं जाना चाहिए, अधिकारी एक कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर हुआ है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये और चिंता का विषय है। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।